السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین و حاضرات، زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور کچھ ایسے مسائل کا حل نکالنے کی بھی کوشش کریں گے جو عام طور پر لوگ ہمیشہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک بہت ہی پیاری بات بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالی نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور ساتھ میں فرمایا رسول کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس میں اطیعوا الرسول نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے رہا ہے اس میں اطیعوا الرسول نہیں ہے، تو پھر اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زکوٰۃ کو اور نہ کسی عمل کو قبول کرے گا۔ تو اس لیے ہمارے سارے معاملات پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری آیت ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو، تزکیہم، تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے، تطہرہم، تاکہ ان کا مال پاک و صاف ہو جائے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہو جائے۔ ایک ہے تطہیر اور دوسرا ہے تزکیہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مالدار ہیں، جو لوگ صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم ان کو دو، تطہرہم، تاکہ ان کی تطہیر ہو۔ یہ جو تطہیر ہے یہ پاکی صفائی ہے، یہ مال کی ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ ہو، یہ دل کی پاکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال بھی پاک و صاف ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کی تطہیر اور تزکیے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और इस बात की भी गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमजान के रोजे रखना। तो इसका मतलब यह है कि ये इस्लाम के बुनियादी 5 अराकीन में से एक रुकन है ज़कात देना। इसका मतलब यह है कि ज़कात देना फर्ज है। अगर कोई आदमी कलमा पढ़ने वाला, नमाजों की पाबंदी करने वाला, रोजा रखने वाला ज़कात का इनकार करता है तो वो काफिर है। जुमला समझ में आ रहा है? अगर कोई आदमी कलमा भी पढ़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल भी करता है, नमाज भी पढ़ रहा है और रमजान के रोजे भी रख रहा है, लेकिन अगर वो ज़कात का इनकार करता है तो ऐसा शख्स काफिर है। अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफाक है, क्योंकि वो एक फर्ज का इनकार कर रहा है, इसलिए फर्ज का इनकार करने की वजह से वो मुसलमान नहीं रह सकता। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग आजकल पैदा हो गए जो ये कहते हैं कि बस साल में एक मरतबा ज़कात दे दो, काफी हर साल देने की जरूरत नहीं है। आपको तमिलनाडु में मिल जाएंगे, आपको ऐसे लोग हैदराबाद में मिल जाएंगे, हो सकता है इक्का दुक्का यहां कहीं भी जो है चुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, किसी से आपका मामला जो है उनसे साबिका पड़ता होगा। ऐसे लोग बहुत आ गए। कुछ लोग कहते हैं कि एक मरतबा साल में दे दो, ये साल भर का हर साल का झंझट खत्म। यानी वो मुकम्मल कुरान करीम की आयात का और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। ज़कात किन चीजों पर वाजिब है? ज़कात 4 किस्म के माल पर वाजिब है। ज़कात 4 किस्म के माल पर वाजिब है। नंबर 1 सोना चांदी, नंबर 2 सामान तिजारत, नंबर 3 चौपाए यानी जानवर, और नंबर 4 जमीन की पैदावार, खा वो अनाज हो, गल्ला हो या फिर फल फ्रूट हो। इन तमाम पर ज़कात देंगे, जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसकी शर्त क्या है, यानी किन शराइत की बुनियाद पर ज़कात दी जाएगी? पहली शर्त यह है कि जो ज़कात देने वाला होगा वो आजाद होगा, गुलाम नहीं होगा। आजाद होगा, गुलाम नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले इंसानों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था और इनको गुलाम कहा जाता था। अब जो आदमी ज़कात देगा वो आजाद होना जरूरी है, वो किसी की मिल्कियत में ना हो, वो गुलाम ना हो। दूसरे यह है कि वो मुसलमान हो। अगर गैर मुस्लिम ज़कात देता है तो उसकी ज़कात काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ईमान ही नहीं है, तो ज़कात देने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी शर्त है निसाब का मुकम्मल होना। निसाब का मुकम्मल होना जरूरी है। निसाब किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर सोना है तो उसका निसाब है, और अगर चांदी है तो उसका निसाब है। वो आगे आ रहा है कि सोना और चांदी कितना देंगे, उसकी मिकदार हम बताएंगे। चौथी शर्त यह है कि जाती मिल्कियत का होना जरूरी है, यानी जिसमें से वो ज़कात निकालेगा वो उसकी ओन प्रॉपर्टी होना जरूरी है। यह नहीं है कि किसी के और के माल पर जो है ज़कात नहीं निकाला जा सकता। और पांचवी शर्त यह है कि जिस माल की ज़कात निकाली जा रही है उस पर 1 साल का गुजरना जरूरी है। अगर 8-10 महीने गुजरते हैं तो ज़कात निकालने की जरूरत नहीं। 1 साल जब उस पर मुकम्मल गुजरेगा उसके बाद जो है उस पर ज़कात निकाली जाएगी। अब सोना चांदी में ज़कात कैसे निकालेंगे? सोना अगर किसी के पास है और वो 7.5 तोले है और उस पर 1 साल गुजरता है, तो सोने के आज की जो मार्केट की कीमत है वो देखेंगे और फिर उसके बाद उसमें से
उसमें से 2.5% यानी 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। और चांदी 52.5 तोले, सोना 7.5 तोले और चांदी 52.5 तोले। अगर इससे कम है तो इसमें ज़कात वाजिब नहीं है, ये माफ है। मिसाल के तौर पर 7.5 तोले पर ज़कात वाजिब होती है। अगर किसी के पास 6.5 तोले है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। चांदी में 52.5 तोले है, अगर 50 तोले है या उससे कम भी है तो उस पर भी ज़कात नहीं है। अब रहा मसला ये, अगर हमारे पास घर में जेवर हैं, चाहे वो कोई खातून खुद पहनती हो या फिर बेटी की शादी के लिए रखे हो या फिर किसी और चीज के लिए जो है सोना रखा हुआ है, उन तमाम जेवर को, सोने को इकट्ठा किया जाएगा। अगर वो 7.5 तोले हो रहे हैं या उससे ज्यादा हो रहा है तो उन तमाम की जो है ज़कात निकाली जाएगी। मिसाल के तौर पर एक औरत के पास 5 तोले सोना है और उसने 5 तोले सोना अपनी बेटी की शादी के लिए खरीदा हुआ है। तो अगर कोई ये समझते हैं ये 5 तोले मेरे हैं, ये 5 तोले मेरी बेटी के हैं, नहीं, ये घर के अंदर मौजूद है तो 10 तोले हो गए, तो 10 तोले सोने का इसमें से ज़कात निकाली जाएगी। और अगर घर के तमाम अफराद का सोना मिलकर 7.5 तोला होता है तो तब भी ज़कात निकालेंगे। मिसाल के तौर पर 3 तोले मां के पास है, 3 तोले मां के पास है, 3 तोले बीवी के पास है और 3 तोले बेटी के पास है। एक ही घर में रहते हैं, कितने तोले हो गए? 9 तोले हो गए। तो ये नहीं है कि सबका अलग अलग है, सबको मिला करके बाकायदा ज़कात निकाली जाएगी। कुछ लोग इसकी तकसीम करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल वाज़े अल्फाज में आपके सामने बयान कर रहा हूं ताकि बात खुल करके आपके सामने आ जाए। अब ये जो 7.5 तोले है, इसकी ज़कात कैसे निकाली जाएगी? आप देखें, आज जो है कितनी तारीख है? 14 मार्च 2025। आज की मार्केट वैल्यू ले लेते हैं, कितनी होगी तकरीबन जी? 8,000 यानी 1 तोले के 8,000 हो गए, 1 ग्राम के 8,000 हो गए। तो इसका मतलब 10 ग्राम के 80,000 रुपए। ठीक है, मैं कैलकुलेशन भी उसी अंदाज से किया हूं। यानी समझिए कि अगर 1 तोला सोना है, उसकी कीमत 80,000 रुपये है। 80,000 रुपये को आप जरब देंगे 7.5 से तो कितने हो रहे हैं? 6 लाख हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि 6 लाख रुपये में 2.5 के हिसाब से हम ज़कात देंगे तो कितने होंगे जी? 15,000। कितने होंगे? 15,000। ये नॉर्मल जो कैलकुलेशन है मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि सोने की कीमत कम भी हो जाए, हो सकता है सोने की कीमत ज्यादा भी हो जाए। अगर आपने 50,000 में भी सोना खरीदा है लेकिन आज की उसकी कीमत 80,000 रुपए है तो आप 50,000 से नहीं देंगे बल्कि 80,000 जो आज की कीमत है, यानी 1 साल आज हो रहा है तो आज की कीमत उस पर लगाई जाएगी और उसके हिसाब से ज़कात निकालेंगे। इसी तरह जो है चांदी का भी मसला है। उसकी दलील सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई। उस औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और उसके हाथ में कंगन थे सोने के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुअतीना ज़कात हादा, क्या तूने ये जो सोने के कंगन है इसमें से ज़कात दी है? उस औरत ने कहा नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे ये बात पसंद है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुझे इसके बदले 2 आग के कंगन पहनाए? तो उस औरत को फौरन समझ में आ गया कि इससे जो है मुझे तकलीफ पहुंच सकती है, अजाब हो सकता है ज़कात न देने की वजह से।
फौरन वो औरत कंगर निकालते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते और कहने लगती है कि इस पर मेरा कोई हक नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल के हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, दीनदारी कैसी थी देखें उस वक्त की औरतों के अंदर। आज सब कुछ होते हुए भी ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है, बचा बचा करके छुपा छुपा करके रखते भी हैं। और मसला जो है ये बड़ा अजीब है कि सोना जो है जेवर औरतों के पास होता है, ज़कात किसको देनी पड़ती है? शौहर को। कम से कम उतना तो बोलो ना अपने शौहर को, देखो जी इतने सालों से ज़कात नहीं दिए हैं, कम से कम ज़कात तो दो। खुद नहीं देते हैं तो कम से कम अपने शौहर को तो बोल सकते हैं। तो ये जो ज़कात का मामला है बड़ा ही गंभीर है, बड़ा ही खतरनाक है। तो याद रखें इसकी वईद भी बहुत खतरनाक है अगर हम अपने माल की ज़कात नहीं देते हैं तो। ठीक है, ये रहा सोने और चांदी की ज़कात का हुक्म। लेकिन आइए दूसरे नंबर पर है माल तिजारत का हुक्म क्या है, यानी तिजारत का जो माल है उसमें से हम कैसे ज़कात निकालेंगे। तिजारत के माल में भी ज़कात दी जाएगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी की दुकान है, वो दुकान ओपनिंग करता है 14 मार्च 2024 को, यानी गुज़िश्ता साल 14 मार्च 2024 को उसकी दुकान ओपनिंग होती है। तो वो ज़कात कब देगा? 14 मार्च 2025 को, यानी आज के दिन देगा। आज कितनी तारीख है? 14 मार्च 2025। इसका मतलब यह है कि एक साल गुजर चुका है, एक साल गुजरने पर वो अपने माल की ज़कात देगा। कैसे माल की ज़कात देगा? उसके पास दुकान में जितना माल है, मिसाल के तौर पर एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, वो पूरे के पूरे माल का वैल्यूएशन करेगा, यानी उसकी इन्वेंट्री होगी और फिर उसके बाद आज की मार्केट और सेल के हिसाब का उसका जो है वैल्यू किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक चीज उसने खरीदी 100 रुपये, एक चीज उसने खरीदी थी 100 रुपये में, लेकिन वो बिक रही है 125 में भी, 130 में भी, 150-60 में भी बिक सकती है। तो आप एक दरमियानी कीमत उसकी निकालें, मिसाल के तौर पर 130 रुपये उसकी कीमत निकालें। और फिर इस तरह जितना दुकान के अंदर, शॉप के अंदर सामान है, उसकी पूरी की पूरी इन्वेंट्री होने के बाद, उसकी वैल्यू निकालने के बाद, मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल जब दुकान में माल रखा गया तो उस वक्त 5 लाख का माल था। एक साल गुजरने के बाद उसमें आज माल है 8 लाख रुपए का। तो कितने माल की ज़कात निकाली जाएगी? 8 पूरे के पूरे माल की जो है ज़कात निकाली जाएगी। और अगर समझें एक आदमी 8 लाख में से ज़कात निकालना चाहता है, 8 लाख रुपए उसका माल है, उसमें से ज़कात निकालना चाहता है, लेकिन वो मकरूज है, यानी किसी से कर्ज लिया हुआ है। 8 लाख ज़कात निकालनी है, 2 लाख रुपए मकरूज है, 8 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो बचे कितने? 6 लाख। तो 6 लाख की ज़कात देंगे। मसला समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान बना करके पेश कर रहा हूं। तो ये जो हुक्म है, अगर वो मकरूज है वाकई में, तो जितना वो मकरूज है कर्ज निकाल दे और बकिया माल में से जो है ज़कात निकाल दे। अब आइए कुछ अहम मसाइल मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहली चीज ये है कि इस्तेमाल की आम चीजों में ज़कात नहीं है। जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आम चीजों में ज़कात नहीं है। जैसे हमारा घर है, उस पर ज़कात नहीं है। हमारे कपड़े हैं, उस पर ज़कात नहीं है। हमारी गाड़ी है, उस पर ज़कात नहीं है। हमारी फैक्ट्री है, उस पर ज़कात नहीं है। हमारी मशीनरियां हैं, उस पर ज़कात नहीं है। हमारी जो सवारियां हैं, उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात उस पर है जिसके लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री की मशीनें हैं, उसमें ज़कात नहीं है, बल्कि मशीनों से जो पैसा आता है और वो सेविंग होता है और उस पर एक साल गुजरता है, तो उसमें से क्या करेंगे? ज़कात देंगे। अब रहा मसला ये, अगर कोई आपके पास साइट है, कोई जगह है, अगर आप घर बनाने के लिए रखे हैं तो उसमें जगह जो है ज़कात नहीं है, लेकिन वही साइट, वही जगह आप कमर्शियल रखे हुए हैं कि आज मैंने 5 लाख में लिया है, 2-4 साल के बाद हो सकता है कि 10 लाख कीमत में चला जाए। तो अगर आप कमर्शियल के लिए उस साइट को रखे हैं, किसी प्लॉट को रखे हैं, तो ऐसी हालत में उसमें से ज़कात
निकाली जाएगी। और वो भी कैसे? 5 लाख में आपने लिया है और आज कीमत उसकी 8 लाख रुपए है, तो आज का वैल्यूएशन देखा जाएगा, आज की कीमत में से ज़कात निकालेंगे। और दूसरी चीज यह है, अगर किसी ने किसी तंग दस्त से कर्ज लेना हो और वो माल मिल नहीं रहा है, तो सही राय के मुताबिक जब उसकी रकम मिलेगी तब वो 1 साल की ज़कात देगा। क्या मतलब? एक आदमी ने किसी को कर्ज दे दिया, एक आदमी ने किसी को कर्ज दे दिया, समझिए कि 1 लाख रुपए कर्ज दे दिया। उसके पास 5 लाख रुपए कैश हैं और 1 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए? 6 लाख रुपए। अब सवाल यह है कि सामने वाला टाल रहा है, मैं अब दूंगा, तब दूंगा, अब दूंगा, तब दूंगा, तो क्या वो 1 लाख रुपए की ये आदमी ज़कात निकालेगा कि नहीं निकालेगा? अगर ये इतना तंगदस्त है, इतना परेशान हाल है कि इसके पास खुद जो है पैसे नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए बाहर फंसे हुए हैं, तो ऐसी हालत में वो छोड़ देगा। जब वो 1 लाख रुपए आएंगे सिर्फ एक मर्तबा ज़कात निकालेगा। लेकिन ये आदमी मालदार है, इसके पास 10 लाख रुपए भी हैं, 1 लाख रुपए आने हैं, वो आ जाएंगे, उसे मालूम है कि वो आएंगे एक ना एक दिन। तो ऐसी हालत में ये 10 और फिर उसके बाद आने वाले 1 लाख रुपए 11 हो जाएंगे, तो इन 11 लाख रुपयों की पूरी ज़कात निकालेगा। यहां ये देखा जाएगा कि उसकी कैफियत क्या है, आया वो मालदार है या गरीब है। अगर मालदार है तो आने वाले पैसों की ज़कात निकालेगा, और अगर गरीब है तो ऐसी हालत में वो उसको छोड़ देगा। 2, 4, 5, 6 साल जब वो मिलेंगे, जब भी पैसे मिलेंगे, सिर्फ एक मर्तबा ज़कात निकालना उसमें से काफी है। ये जो है अहले इल्म ने इस बात पर फतवा दिया है, और जो है किबार उलमा का इस पर जो है फतवे मौजूद हैं। चौथी बात यह है, एक और मसला बड़ा अहम है, वो ये है, अगर किसी शख्स पर ज़कात वाजिब थी और वो मर गया, अगर किसी शख्स पर ज़कात वाजिब थी लेकिन वो मर गया, लेकिन उसने ज़कात नहीं दी, तो ऐसी हालत में ज़कात साकित नहीं होगी, बल्कि उसके जो वारिस हैं वो पहले ज़कात देंगे। पहले क्या करेंगे? वो ज़कात देंगे, और ज़कात देने के बाद विरासत तकसीम होगी। और अगर वो ज़कात नहीं देते हैं तो उनकी औलाद मुजरिम होगी, अल्लाह ताला के पास उनकी पकड़ होगी, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, लेकिन उसकी जो ज़कात देना बाकी था वो वरसा के ऊपर है कि वो उसकी ज़कात दें, लेकिन अगर नहीं देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के पास उनकी पकड़ होगी। इसी तरह एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां का इंतकाल हो गया, वो रोजे नहीं रखी थी, अगर वो जिंदा रहती तो रोजे रखती, तो क्या मैं उसके तरफ से रोजे रखूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फदैनुल्लाहि अहक्कु अन युक़दा, अल्लाह ताला का कर्ज ज्यादा हक रखता है, उसे अदा किया जाना जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि यह अल्लाह का हक है, यह ज़कात क्या है? फर्ज है, वाजिब है, इसका देना जरूरी है। अगर हम ज़कात देते हैं तो इसके फायदे क्या है? अगर हम ज़कात देते हैं तो इस ज़कात देने के फायदे क्या हैं? पहला फायदा यह है कि हमारे ज़कात निकालने की वजह से किसी गरीब, मिस्कीन, फकीर की मदद हो जाएगी। और दूसरा फायदा यह है कि नफ्स बखीली से महफूज रहेगा। और तीसरा फायदा यह है कि इंसान के अंदर शुक्रगुजारी का मादा पैदा होगा, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का मादा पैदा होगा। और चौथी चीज यह है कि माल में ज्यादती होगी अगर हम अपने मालों की ज़कात देते हैं। और पांचवी चीज यह है कि दुनिया व आखिरत की मुसीबतों से नजात मिलती है मालों में ज़कात निकालने की वजह से। लेकिन आइए, अभी दो बातें रहती हैं, एक यह है कि ज़कात न निकालने वालों के लिए क्या वईद है, और दूसरी है ज़कात किनको देना चाहिए। जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देते हैं उनके लिए इतनी बड़ी वईद है कि जब हम कुरान करीम के आयत को पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरह तौबा के सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग अपने सोने और चांदी को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं,
फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। यानी जो लोग अपने मालों को, सोने और चांदी को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, उन लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दी जा रही है। और वह अजाब क्या होगा? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, वो जो माल उनका है जहन्नम की आग में उसको तपाया जाएगा। जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देते हैं, सोना चांदी रुपया माल पैसा करेंसी जो भी है, अपने मालों की ज़कात नहीं देते हैं, उसको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, पकाया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर उसके बाद उनके पेशानी पर, उनके पहलुओं पर और उनके पीठों पर दागा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, और कहा जाएगा ये वही तुम्हारा खजाना है जो तुम जमा करके रखे थे। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये उसी का अजाब है जो कुछ तुमने अपने मालों को जमा करके इकट्ठा करके रखा था। तो इसलिए उन लोगों को डरना चाहिए जो अपने मालों में से ज़कात नहीं देते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, माल हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो तिजारत का माल हो, चाहे कोई भी चीज हो। जिस तरीके से चार बातें पहले बताई गई हैं, इनमें से ज़कात देना बहुत जरूरी है। आयत बहुत ज्यादा है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मसारिफ ज़कात पर बात करते हुए अपनी बात को मैं खत्म कर देता हूं। ज़कात किन लोगों को देना चाहिए? ज़कात किन लोगों को देना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर इसको बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। 8 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात दी जाएगी। 8 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात दी जाएगी। नंबर 1, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, जो ज़कात के हकदार हैं वो पहले नंबर पर है फकीर। फकीर कौन है? जो भीख मांगते हैं। फकीर वो लोग हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। फकीर वो लोग हैं जो लुकमे दो लुकमे के लिए तरसते हैं, इनको फकीर कहा जाता है। लेकिन आज हमारे मुल्क में, एशियन कंट्रीज में, ये फकीर बाकायदा इनका खानदान चलता है और ये टोटली जो है पेशावर हो चुके हैं। यूं समझिए कि ये इनका सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया बिजनेस है। और आज हालात ऐसे हैं कि एक खट्टा खट्टा मोटा ताजा होता है, अगर उसको काटेंगे ना, आधा गांव खाने के बाद फिर भी इसका गोश्त बचेगा। उतना मोटा ताजा सांड रहता है एकदम। अगर उसको बोलेंगे ना, भाई कमा के क्यों नहीं खाता, तो बोलेगा देना है तो दो, नहीं तो नहीं। यानी उनके अंदर तकब्बुर और घमंड इतना ज्यादा होता है, अल्लाह अकबर, हम सोच भी नहीं सकते। और बाकायदा उनका पेशा है ये फकीरी करना, भीख मांगना, उनका पैसा जो है पेशा है। सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ऐसे फकीर हैं, मुंबई के अंदर, जिनकी 10-10 मंजिला बिल्डिंग है। आप जाइए यूट्यूब में, ऐसे ऐसे फकीर आपको मिलेंगे जिनकी 10-10 मंजिला बिल्डिंगें मौजूद हैं। आज से तकरीबन 20-22 साल पहले, 25 साल पहले की बात है। मैं एक मर्तबा हरिहर से हुबली के लिए सफर पे था ट्रेन में। एक आदमी जो है जिसके पैर बिल्कुल नहीं है, और वाकई में वो अपाहिज था, माजूर था, हैंडीकैप था। वो ट्रेन में जो है हमेशा जब भी मैं देखता वो भीख मांगता था। मैंने एक दिन बुला करके पूछा, हालांकि हल्की सी दाढ़ी भी थी और सर पे टोपी भी थी, 20-25 साल पहले की बात है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? कहने लगा मुझे नाम अच्छी तरह याद है। उसने कहा मेरा नाम अल्लाह बख्श है। बोले आप ये भीख मांग करके जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका कोई पुरसाने हाल नहीं क्या, कोई पूछने वाले नहीं क्या? बोले है ना, मेरे 2 बेटे हैं। बोले वो क्या करते हैं? बोले वो MBBS कर रहे हैं। बच्चे MBBS कर रहे हैं और बाप क्या कर रहा है? ट्रेन में भीख मांग रहा है। आप अंदाजा लगाओ। और वैसे भी भिखारियों के बारे में एक चीज मशहूर है कि
ایک لڑکی جو ہے جس محلے میں تھی وہ اس محلے سے تیسری گلی میں چلی گئی، تیسری گلی میں چلی گئی. تو یہ ایک فقیر جو ہمیشہ ایک محلے میں آتا تھا، اپنے اس کے ماں کے محلے میں، 2-4 مہینے گزرے تھے تو اس گلی میں آنے لگا جہاں یہ لڑکی سسرال میں رہتی تھی. وہ لڑکی پوچھنے لگی بابا آج کل ہماری گلی میں نہیں آ رہے ہیں، یہ گلی میں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بولے نہیں میری بیٹی کی شادی ہوئی. بولے بیٹی کی شادی ہوئی تو کیا ہوا؟ یہ گلی میں بھیک مانگنے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کی گلی میں سسرال میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ گلی میں کیوں آ رہے ہیں 3-4 گلی کے بعد؟ بولنے لگے وہ جو گلی ہے میں داماد کو جہیز میں دے دیا. یہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں ان لوگوں کے پاس. یہ پروفیشنل بھکاری ہیں، ان کا پیشہ ورانہ دھندا ہے یہ. اور ان کے پاس جتنی مستی رہتی ہے، ان کے پاس جتنی اکڑ اور گھمنڈ رہتی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک کروڑ پتی مالدار کے پاس بھی اتنا گھمنڈ نہیں رہتا ہوگا. یہ میں ذاتی تجربہ پیش کروں آپ کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ تجربہ آپ لوگوں کے پاس ہے. کیونکہ مارکیٹوں میں آپ اگر بول دیں گے نا کسی کو آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں چلے جاؤ بعد میں آ جانا آپ بزی ہیں، تو بولتا ہے دماغ خراب ہے اس کا، اتنی بڑی دکان رکھا ہوا کچھ بھی نہیں دیتا. یعنی الٹی سیدھے اول فول بکنا شروع کر دیتا. اچھا ایک اور بات ہمارے یہاں اور عربوں کے اندر کیا فرق ہے معلوم ہے؟ اگر ہمارے یہاں کوئی فقیر کوئی غریب مسکین آتا ہے تو ہم لوگ ٹھیک ہے بھیج دیتے ہیں اس کو، کبھی کبھی لوگ ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن کسی غریب کو کسی فقیر کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی غریب کو ڈانٹو نہیں. ہاں اگر اس طریقے کے مشٹنڈے آتے ہیں تو ان کو ڈانٹ کر کے بول دو جا کما کر کے کھا، یہ بھیک مانگنے کا کوئی دھندا چھوڑ دے. لیکن عربوں کے اندر ایک چیز ہم نے بڑی اچھی دیکھی ہے، اگر وہ لوگ دکان میں آتے ہیں یا کسی آدمی کے پاس جو ہے مانگنے کے لیے آتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے، تو لوگ پیارا جملہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اللہ اعطینی و اعطیک، اللہ تجھے بھی دے مجھے بھی دے. پیارا جملہ ہے یہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، توحید کی بات ہے یہ. یعنی جو آدمی اللہ کو جانتا ہے سمجھتا ہے وہ توحید والی بات کرتا ہے. اور خاص کر کے آپ دیکھیں ہمارے یہاں کچھ لوگ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اجمیر شریف جانا ہے اور وہاں جانے کے لیے میں پوری فیملی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ذرا میری مدد کرو. تو ان سے یہی کہنا کہ بھئی وہیں جا کر کے لے لو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کے لیے ہم مدد نہیں کرتے. کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ بوڑھیاں آتی ہیں، ٹوکرا ان کے سر پہ ہوتا ہے، ان کے ٹوکرے میں ایک مورتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کوکم ہوتا ہے، یا تو پیلا ہوگا یا تو لال ہوگا، اور جیسے ہی وہ بولتے ہیں نا یوڑ کوٹی پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے جیسے ہی آپ ان کے جو ہے وہ ڈالنا کہاں پڑتا ہے ڈائریکٹ نہیں لیتے ہیں، اور اگر لیتے بھی ہیں وہ ٹوکری میں وہ بت کے سامنے جو ہے وہ پیسے رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ٹوکرے کو آگے کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر پیسہ ڈالو، اور جیسے ہی ڈالیں گے فوراً وہ پیشانی کے اوپر ٹیکا لگا دیتے ہیں. یاد رکھیے اگر آپ کسی غیر اللہ کے لیے کوئی آدمی مانگتا ہے اور مدد کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، حرام ہے اس طریقے کی چیزیں. اور آج ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں مارکیٹوں کے اندر. یاد رکھیے یہ سراسر غلط ہے، حرام چیزیں ہیں. اگر کسی فقیر کو کسی غریب کو دینا ہو تو دیکھ کر کے دیں. اور ایک بات، تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے ایک ایسا آدمی آپ کے سامنے آتا ہے اور ایسی اداکاری کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا غریب یہی ہے، لیکن جانتے ہیں اس کو پیسے کس کے لیے چاہیے؟ وہ 1 نمبر کا کڑکا رہتا ہے، 1 نمبر کا شرابی نشیڑی رہتا ہے، وہ منہ نہیں کھولتا، اسے معلوم ہے منہ کھولا تو میری پول کھل جاتی، تو اس واسطے منہ بند رکھ کر کے یوں ہاتھ کر کے بس کھڑا رہتا ہے. اور ایسے لوگوں کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ آپ پیسہ اس کو دیں گے کہاں جائے گا؟ شراب کی دکان پہ ہی جائے گا. تو ایسی حالت میں ایسے شرابیوں کو، جواریوں کو، نشیڑیوں کو اور ایسے ڈرگس کا استعمال کرنے والوں کو آپ اپنے مالوں میں سے زکات بھی نہیں دیں گے اور آپ جو ہے اس کی مدد بھی نہیں کریں گے، ورنہ جو ہے ہم لوگ پکڑے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. بات بہت لمبی ہو رہی ہے، آگے اور بھی بہت ساری باتیں. دوسرے نمبر پر ہے مسکین. مسکین کو کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر وہ ہے جو لقمے 2 لقمے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کھجور 2 کھجوریں لے کر کے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مسکین کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے
उसके पास दौलत तो नहीं है, लेकिन उसके पास गीरत है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। दौलत तो नहीं है, खाता है, पीता है, गाड़ी है, चलता फिरता सब कुछ है, लेकिन उसकी जितनी दौलत है उसमें वो सेविंग नहीं करता। यूं पैसे आए खर्च कर लिया, जो कुछ भी था उसका गुजारा हो रहा है। ऐसा आदमी मिस्कीन है। और ये जो मिस्कीन है हमारे अपने रिश्तेदारों में हो सकते हैं, हमारा अपना भाई हो सकता है, हमारा बहनवी हो सकता है, हमारे चचा मामू हो सकते हैं, कोई भी जो है मिस्कीन हो सकते हैं। तो इसलिए मिस्कीनों का खास ख्याल रखा जाए। फकीर तो अपनी जगह है जैसा कि आपने सुना, लेकिन मिस्कीन जो है हमारे अपने होते हैं। कोई एक जमात का साथी हो सकता है, हमारा अपना दोस्त भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी भी मिस्कीन हो सकता है। देखने में घर अच्छा है, गाड़ी भी है उसके पास, बेचारा आ रहा है जा रहा सब कुछ है, लेकिन उसके पास सेविंग कुछ नहीं होता है, ज़कात देने के काबिल वो आदमी नहीं है। तो ऐसी हालत में मिस्कीन का ख्याल रखना जरूरी है। हो सकता है कि जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हो वो इमाम हो सकता है, उस मस्जिद का जो है मुअज्जिन हो सकता है, उस मस्जिद का खादिम हो सकता है, किसी मदरसे का इमाम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए मिस्कीन को ढूंढ करके आप जाएं और वहां उनको ज़कात दें, ताकि आपका जो पैसा है वो सही जगह लगे और फिर उसका जो है अजर के मुस्तहिक आप हो जाएं। तीसरे नंबर पर वल आमिलीन अलैहा, ज़कात उसूल करने वाले। ये तो इस्लामी हुकूमत जब तक थी तो वहां पर लोग जो है ज़कात को उसूल करते थे, उनको दिया जाएगा तनख्वाह के तौर पर। और चौथे नंबर पर वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, ऐसा आदमी अभी इस्लाम तो कबूल नहीं किया है, लेकिन इस्लाम के बारे में उसका दिल बड़ा नरम है, तो आप थोड़ी बहुत ज़कात उसको दे दें, हो सकता है कि वो अपनी जरूरत पूरी कर ले और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। या बाज़ अहले इल्म ने यह कहा है कि एक आदमी इस्लाम कबूल कर लेता है, नौ मुस्लिम है, अब उसको पैसों की जरूरत है, घर वालों निकाल दिया, रिश्तेदारों ने निकाल दिया, घर वालों ने बैकाट कर दिया, तो इसी हालत में वो कहां जाएगा बेचारा। तो इसी हालत में हम अपने ज़कात में से उसको उसकी मदद कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पर वफिर रिकाब, कैदी की भी मदद ज़कात के पैसों से की जा सकती है। कैसे? मिसाल के तौर पर एक आदमी को बिला वजह ले जाकर के जेल में डाल दिया गया, जैसा कि आजकल चल रहा है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के ले जाकर के डाल दिया जा रहा है। तो इसी हालत में उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आप ज़कात का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। हां, ऐसा कैदी जैसे किसी ने मर्डर किया है, आप उसकी मदद नहीं करेंगे। किसी ने मर्डर किया है, किसी ने अगर मर्डर किया है तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे। किसी ने जिनाकारी किया है, आप उसकी मदद नहीं करेंगे। किसी ने जुर्म किया है, ऐसे आदमी की आप मदद नहीं करेंगे। बल्कि ऐसा कैदी जो बिला वजह ले जाकर के उनको जेलों में फेंक दिया गया है, आप उनको निकालने के लिए जो है अपने माल की ज़कात, अपने जो है माल में से ज़कात दे सकते हैं। छठे नंबर पर वल गारिमीन, मकरूज आदमी को ज़कात दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी खाते पीते जो है अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन वो मकरूज है, किसी वजह से कर्ज लिया था और कर्ज में डूबा हुआ है, तो उसके कर्ज की अदाई के लिए आप जो है ज़कात दे सकते हैं। और सातवें नंबर पर वफी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में, यानी जंगें जो होती थी उस वक्त जंगी साजो सामान को इस्तेमाल करने के लिए जो है फी सबीलिल्लाह इसको कहा जाता है। बाज़ अहले इल्म ने यह कहा है कि ये फी सबीलिल्लाह के अंदर मदारिस भी आ जाते हैं, जो मदरसे हैं ये फी सबीलिल्लाह में आ जाते हैं। हालांकि उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, उन्होंने कहा कि हाँ, मदारिस जो है इसके हकदार हैं, उनको भी दिया जा सकता है। आठवें नंबर पर वब्न सबील मुसाफिर, अगर कोई मुसाफिर भटका हुआ आपके पास आ गया और उसने कहा कि मेरा जो है पॉकेट चोरी हो गया या और भी कोई चीज, और साबित होता है कि वाकई ये अपने इलाके में मालदार है, तो तब भी कोई मुश्किल नहीं है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई आदमी उसकी पॉकेट कट गई या उसके पर्स जो है चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसी हालत में अगर वो आदमी आपके पास आता है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो मालदार ही क्यों ना हो। तो ये 8 अफराद हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि ये जो है इनको ज़कात देनी चाहिए, ये ज़कात के हकदार हैं। तो आज के दर्स के अंदर ज़कात के ताल्लुक से तमाम बातें आ चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, और अगर कोई मसला समझ में ना आया हो तो हम यहाँ पर हाजिर हैं, जो हमारे इल्म में है वो आपको बताएंगे, जो हमारे इल्म में नहीं है हम जो है ये कहेंगे कि वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आप तमाम को और हर मुसलमान मालदार को अपने मालों में से ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।